Hi, good morning everyone. A very warm welcome for today's Utthaan session. The speaker of today's session is our Sangeeta Didi. Didi, welcome, and I request you to please take over the session of the new series Self Discipline and Commitment. Shanti, good morning, all of you. So the session in itself is a first statement, discipline, right? So all of you disciplined souls, all those who so understand and are really disciplined souls, they are. So can come in the corporeal form from the angelic form. All the divine angels. Good. Discipline this is one of the best discipline, where we can talk to each other. Every one of us can see each other, the first discipline. So all of you will be following it, I'm sure. And all those who will be joining also will be following. So in fact, the whole month is a very beautiful awakening for us, self-discipline and commitment. So the first two sessions will just go on the self-discipline. So thanks very much for all those who are disciplined souls and are becoming. So last time we had studied about whom to be disciplined. When it is called self, तो किसको discipline होना? किसको discipline होना है? याद है? Self जब हम कहते हैं self empowerment, self development, self management, self reflection, self discipline. तो self मतलब क्या? So all of us have understood self मतलब so fast, जिसको बहुत अच्छे से समझ में आया. Self का मतलब है when we talk about self. Chat में आंसर दूंगी. Yes. Self का मतलब soul. Me, the soul. Whom to discipline. This is to be disciplined. Self-discipline. जब वो डिसिप्लिन होता है तो बाकी सबको वो एनफोर्स कर सकता है डिसिप्लिन. So this is therefore self means to discipline the self. And when we talk about self-discipline, so now first is self-discipline मतलब क्या क्या आता है डिसिप्लिन में. When we say कि ये बड़ा डिसिप्लिन्ड घर है, that person is very disciplined, तो उसमें क्या क्या आता है. So क्या क्या आता है वो आज हम देखते हैं. पूरी लाइफस्टाइल है ना जिसको हम कहते हैं डिसिप्लिन. तो क्या क्या डिसिप्लिन करना है, कब उठना है, कब सोना है, कब जागना है, कब क्या खाना है, क्या सोचना है. Means everything is to be in a disciplined manner. When to wake up, because normally discipline is always something which could be seen, and the one which we can see is dependent on how we think. I want myself to be on time, so this is my discipline. And one discipline is कि ओके चलो क्या प्रॉब्लम है, 5 मिनट लेट होता है, क्या कुछ फर्क थोड़ी पड़ता. ये भी एक मेथड है. तो whom will we call discipline? जिसका एक्यूरेसी है इन एवरीथिंग. तो सेल्फ डिसिप्लिन मतलब when to wake up, when to sleep. If we just start with the little things, discipline is not on a particular program. कि कोई प्रोग्राम है उस समय हम ठीक रहे, हम हाजिर रहे, पर हम रेगुलरली
हम लोग स्कूल में होते थे, वी यूज टू गेट मार्कशीट एट द एंड, एंड उसमें कैरेक्टर का होता था ना मार्क, एक डिसिप्लिन का होता। तो मतलब इवन when you, how is your attendance, then how you dress up, everything has its own marks. So similarly discipline. So first we'll start with when to wake up. क्या राइट टाइम होता है जागने का? अब आप कहेंगे कि शहरी लाइफस्टाइल है या कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल है तो लेट जागना, लेट सोना। नो, बिकॉज लेट सोते हैं तो लेट जागते, सिंपल रीजन है। तो सोने का भी डिसिप्लिन, कितने घर ऐसे हैं कि जहां बहुत, किसको हम डिसिप्लिन कहेंगे? लेट लेट रात तक जागते रहना, इसको डिसिप्लिन कहेंगे? कि टाइम से सो जाना डिसिप्लिन? सोने में ए बी, टाइम से सो जाना, दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन। लेट जागना, तो चाहे इसका मतलब हम चाहे वही काम करें पर हम जल्दी सो के जल्दी उठ के करें, दैट इज कॉल्ड लेट, टाइम से डिसिप्लिन लाइफस्टाइल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोने का डिसिप्लिन, बिकॉज सोने से when you are clear about when to sleep, then it is easy for us to understand how to wake up टाइम से। क्योंकि अगर हम जस्ट इमेजिन वी सिट लेट आवर्स, वी do everything late. Now what is happening? We are doing maybe very productive work, or we are sitting late hours with the office work, or there is some strong discussion in the family, we have reached home late, so therefore then there is a discussion, we meet। अब वो डिस्कशन पूरे दिन का थका हुआ माइंड है, राइट? माइंड पूरा समय चलता है, शरीर तो फिर भी गाड़ी में बैठ जाता है, माइंड चलता रहता है। वो थका हुआ माइंड, और फिर इतने सारे इश्यूज है, शरीर से हम काम करेंगे, but what is getting affected in all the issues going on in the road, in the office? Mind is getting affected. So with that affected, in maybe sometimes even injured mind, I am working or I am discussing, and that too very crucial matters of the family. क्या हो रहा है? थका हुआ माइंड इस चिड़चिड़ा माइंड, और चिड़चिड़े माइंड से जो डिस्कशन भी होगा हमारा, बहुत जल्दी उसमें गुस्सा, बहुत जल्दी आर्ग्यूमेंट्स, इरिटेशन, एंड देन मिसअंडरस्टैंडिंग, एंड विद दैट मिसअंडरस्टैंडिंग हम सो जाए। ठीक है बाबा, तुमको कितना भी कह दो मुझे, बिकॉज सबके माइंड थके हुए हैं, इवन दोज हु आर इन द हाउस and those are even outside, coming from home, coming from outside job. And with that, we are taking some crucial decisions. We have to check ourselves. Is it worth? Secondly, I'm doing job, क्योंकि late night, unless and until कोई बहुत time difference है, which is also should be very inevitable, which is inevitable, but should be avoidable. But doing such kind of jobs, sitting late hours. So what I am doing with the tired mind, I'm doing the office work. So do you feel the efficiency would be full 100? Will my decision power be accurate? And then उस समय अगर कोई वो, suppose I'm doing some IT work और कुछ नहीं हुआ, तो इतना ज्यादा क्रोध आ जाता है, and then I leave because हुआ नहीं। With that state of mind, I sleep. पांचवी गैर में एकदम बंद कर दिया, क्या हो जाएगा? एक जर्क आएगा। That is the reason the mind is not silence. The mind is still awake and the body is sleeping. और हम पता नहीं क्या, फिर हम कहते पता नहीं क्या क्या सपने आते, पूरा दिन जो ऐसे वर्क कर रहे थे वो का वही। Silencing the mind and then sleeping. And one is in the wake stage, in that active stage you are sleeping, and third is
in the negative state, I'm sleeping. So the way I sleep is responsible so for the state of mind when I get up. अब मैं उसी फीलिंग से अब मैं उठती हूँ, लेट सोए लेट उठे, और लेट उठे तो क्या हो जाता है, हम क्या क्या मिस करते हैं क्योंकि लेट लेट हुआ. So I cannot do anything for the mind, no spiritual practices, not even much I can do for the body. Even if I'm very much health conscious, so maybe I'll do something for the body. And then I get up fast. और फिर मैं उस हरी मूड में तैयार हूँ. और फिर प्लस अगर कुछ ऐसे नेगेटिव डिस्कशन से फिर मैं सो गई. तो the way I'm actually entering, starting the day, and I need positive results, powerful results. I have to go, it's a long day ahead. There are so many issues as it is ready outside in the world. And उस issues में अगर मेरा state of the mind की starting ऐसी है, which is very true even for the youngsters. Now we in the corporate world, we are doing suppose like that, late sona, late khana, late discussion. What are we creating the energy in the house? Late का. बच्चों की आज सबसे बड़ी कॉमन हैबिट क्या हो गई है, जल्दी उठकर पढ़ना या लेट उठ के पढ़ना, लेट जागकर पढ़ना. अब लेट जागकर वो सोचते क्या है, 10 से 4 सोने के बजाय 4 से 10 सो जाओ, 4 बजे सो जाओ. चलो 4 बजे सो गए क्योंकि शांति रहती है, आराम से पढ़ सकते हैं, पूरे दिन का झंझट से दूर. अब वो उठेंगे 11-12 बजे क्योंकि उठने का टाइम तो वही है. और फिर उसके बाद देन द वर्किंग स्टार्ट्स, whatever they have to study or what all. So the whole day there is all mind is running, and with this running state of mind जो चलता ही रहता है, रात के 8 बज गए, 10 बज गए और अब सब सो गए. अब माइंड ऑलरेडी इतना चल रहा है, चला हुआ है. चाहे हम सुबह से आप हमारी फ्रेशनेस देखो घर ऑफिस में, एंड दिन में हमारी फ्रेशनेस देखो ऑफिस में, व्हेन आर वी मोर फ्रेश? मॉर्निंग में जितनी फ्रेशनेस है. इसलिए इन द स्कूल इफ यू रिमेम्बर द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर्स यूज्ड टू बी टेकन, द मैथ्स का, साइंस का हमेशा मॉर्निंग में होता था. क्लासेस में मॉर्निंग में होते थे बिकॉज माइंड इज वेरी पावरफुल दैट टाइम. तो ऐसे इतना डिफिकल्ट थका हुआ माइंड से अब व्यक्ति पढ़ने जा रहा है इन द नाइट. व्हाट डू यू फील? माइंड की ग्रास्पिंग अच्छी रहेगी या कम होगी? और फिर ऐसी ग्रास्पिंग ये वाली स्टाइल से, एंड देन दे आर स्लीपिंग. कुछ ग्रास्पिंग हुई, कम हुई और सो जाते हैं. अब सोते समय, क्योंकि पढ़ने का मतलब एक प्रेशर, एक कंपटीशन, एक टारगेट, और वो प्रेशर में माइंड सो रहा है. उठेगा ड्यूरिंग दैट 6 hours of sleep also कैसी है? So we have to check ourselves, is this lifestyle right for me? And the one which is not right for me is not a disciplined lifestyle. Discipline का मतलब ही है सोना कब और उठना कब. The very first, now when we get up early, अगर suppose हम really we are very understanding and really we want to work on the self. Normally even अगर पुराने, even if you're not spiritual, कौन सा टाइम बेस्ट है सोने का? हमारी चीफ हमेशा कहती थी 10 मतलब बस. तो राइट टाइम पे हम सोए, चलो 10 नहीं 11, और हम जल्दी उठ जाते हैं. मे बी 4 o'clock बेस्ट टाइम, इफ नॉट 5 o'clock, चलो एट द मोस्ट 5:30. When we have time, we have to go to office 8 o'clock को जाना. और अगर हम जल्दी उठ गए, then how much time do we have for the self? And in that fresh mind, now you do any work.
व्हाट डू यू फील? उसमें अगर सपोज बहुत क्रूशियल वर्क भी है, बट जो रात का था वो आप सुबह करो, डू यू फील माइंड वुड बी मोर फ्रेश एंड पावरफुल टू अंडरस्टैंड एंड डू इट? फ्रेश माइंड है, एंड एवरी डिसीजन हैज टू बी टेकन बाय द माइंड. Grasping highest, decision highest. It's called, it's said scientifically, 4 o'clock, 2 to 5 is the least disturbed time. And 4 o'clock medically, medical science have proved that हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसकी सिक्रेशन हाईएस्ट होती है, और पीनियल ग्लैंड विच इज द स्पिरिचुअल ग्लैंड उसकी दी बेस्ट होती है. अब ये जब हाईएस्ट होती है, एंड दिस इज द मास्टर ग्लैंड वी ऑल नो, और उस समय हम उसमें बहुत पावरफुल थॉट्स डालें या उसको उस माइंड में कोई राइट डिसीजन देना है, बिकॉज द माइंड पावर इज हाईएस्ट, फिजिकल पावर इज हाईएस्ट, उस समय हाईएस्ट डिसीजंस लेना. सो देयरफॉर इफ वी जस्ट सी द प्रैक्टिस नाउ, जस्ट टेक फॉर योरसेल्फ. अब आप राइट टाइम पे उठे, सपोज 4 बजे उठे, एंड डन यू हैड टाइम एंड 30 मिनट्स यू स्पेंट ऑन मेडिटेशन. मन को फुल, जब मन पूरा पिट्यूटरी ग्लैंड की सीक्रेशन की हाईएस्ट स्टेट थी, उस समय आपने पूरा उसको स्पिरिचुअल पावर से भर दिया, डीप कनेक्शन, एंड यू फील एनर्जाइज्ड योरसेल्फ. और फिर विद दिस एनर्जी लेवल नाउ यू गो इवन फॉर वॉकिंग, डूइंग समथिंग फॉर द बॉडी. तो शरीर का भी ध्यान रखा, बिकॉज यू हैड टाइम. वट एवर योगा पूरा मंथ वी हैड स्पेंड, तो योगा वट एवर, तो वो शरीर भी का भी ध्यान हुआ, योगा भी हुआ. और फिर कुछ डिस्कस करना है, यू हैड टाइम इन हैंड, एंड देन यू लेफ्ट फॉर ऑफिस. तो आपने क्या किया? शरीर मन का भी ध्यान रखा, तन का भी ध्यान रखा, और संबंधों का भी ध्यान रखा. जब हम लेट उठते हैं, सबको जल्दी जल्दी कर देते हैं, एंड उस जल्दी जल्दी में हम सब जानते हैं कितने गड़बड़ भी होते हैं. उसकी बस मिस हो गई, उसका वो चीज खा रहे वो गिर गई, नो देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स. और उस सब का कारण हम कहते तुमने ऐसा ठीक नहीं किया, तुमने ये ठीक. समवेयर मेरा लेट उठना एक बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन होता है. डू वी अंडरस्टैंड? क्यों? और उसके कारण फिर वो लाइक स्टार्टिंग ऑफ द डे हलचल, डिस्टर्ब, आर्ग्यूमेंट. ही इज पिन पॉइंटिंग ऑन दैट पर्सन, उसने कहा तुमने लेट उठाया, तुम, उसने कहा, एंड ये आर्ग्यूमेंट से हम वी आर स्टार्टिंग द डे. एंड नाउ सी द अदर वे अराउंड. हलचल नहीं, टाइम इन हैंड है, एंड यू स्टार्ट द डे विद दैट पावरफुल एनर्जी. और फिर हैविंग ब्रेकफास्ट एंड देन लिविंग फॉर द ऑफिस द कूल माइंड. घर में सब ठीक ठाक बातचीत करके हम निकले. मन, शरीर, वहां जॉब में परफॉर्मेंस भी कैसे होगी? डू वी फील परफॉर्मेंस अच्छी होगी अगर मन शांत है, घर में सबको सेटिस्फाई करके हम निकले तो शांत परफॉर्मेंस अच्छी होगी. और ऐसी अच्छी परफॉर्मेंस जब वहां हम करेंगे, हम सेटिस्फाइड होके, एंड इवन इफ इट्स परफॉर्मेंस तो अच्छा है, सपोज इश्यूज कुछ भी आया, बट नाउ माई माइंड इज चार्ज्ड, एंड देन देयर आर इश्यूज, द वे आई विल डील विद द इश्यूज. फर्क है. थका हुआ माइंड, क्योंकि लेट सोए, लेट उठे, ऐसा कुछ हुआ, और माइंड पहले से थका हुआ है. हाँ, ऑफिस में आ तो रहे, लेकिन उसने ऐसा किया, बच्चा लेट हो गया होगा, वहां उसको डांट पड़ी हुई. सो एवरीथिंग इज गोइंग इन द माइंड, एंड देन वी आर डूइंग द जॉब. हाउ इज इट? द डिफरेंस है. एंड देयरफॉर व्हेन टू वेक अप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन आवर लाइफ. और हमारे पास केवी राजू, आई हैड अर्लियर आल्सो मेंशन्ड, who was the MD of Nagarjuna Fertilizers, आते थे. He is no more now, 90s की बात है. तो it was the first company where we started the corporate management workshops.
So when he first came in Mount Abu, our headquarters, he was very much fascinated by the discipline. Even if it's 100 people in one complex, 1,000 people in another complex, 25,000 to 30,000 people coming from all over the world, but अगर 9 o'clock के बाद मिल्क नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा उस डिपार्टमेंट में, और अगर 10 बजे सोना है तो by 10 o'clock, even if it's 25,000, the lights are switched off, and 10:30 you will find as if the 1 o'clock of Delhi, इतना वहां 10:30 को पूरा बंद. तो and then waking up early at the morning, and then doing meditation, being charged, listening powerful positive thoughts, and then doing the other jobs, because 25,000 people है. आपके घर में 10 मेहमान आने वाले हैं एडिशनली, कितने बिजी हो जाएंगे आप? हो जाएंगे बिजी? 20,000 मेहमान है, लेकिन वही टाइम है. और ऐसे फिर वो he was very fascinated. फिर उसने सोचा कि I will do the same. So very important personality, who's who in Hyderabad, उसमें नाम है. Socializing and social pressure तो obviously रहता है, but he decided कि कुछ भी हो जाए मुझे I will follow this. 9 o'clock. So he started the day by sleeping early, not by getting up early. तो 9:30 तक he would be on the bed. मतलब, and then reading powerful literature, very positive, powerful literature, not talking with anybody else. And 10 o'clock he would sleep, and every day 3 o'clock he would get up. 3 to 5 meditation करके, और फिर बाद में listening very powerful 7 to 8 spiritual knowledge. And before anybody comes, 9 o'clock he's in the office. And then he would say, narrate his experience, कि I would call the meeting by 10:30, all important board of directors की meeting. कुछ भी important बात होती थी, I had a very clear solution. जो meeting 4 घंटे लगती थी, वो 1 घंटे में खत्म हो जाती थी. We had ample time in it, because the solution was crystal clear. And when this solution was put before the board, everyone would unanimously accept it. This is called discipline. तो क्या था कि जल्दी सोना तो जल्दी उठना. अच्छा, जल्दी उठ के फिर क्या करें? फिर डिसिप्लिन, फिर मेडिटेशन, और तीसरा है पॉजिटिव नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज. सुबह सुबह आपने आधा घंटा, बिकॉज यू हैड टाइम, यू वोक अप अर्ली, आपने 30 मिनट्स एकदम पावरफुल लिटरेचर पढ़ा. एंड इफ यू कैन ज्वाइन दिस काइंड ऑफ क्लासेस विच वी हैव इन द मॉर्निंग, तो हमने मॉर्निंग में आधा घंटा पावरफुल नॉलेज सुना कि परमात्मा आपके साथ है, आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता. ओनली यू कीप दैट फीलिंग दैट द हाईएस्ट एनर्जी इज विथ मी. ये स्टेटमेंट आपको 30 टाइम्स सुनने को मिले इन द 30 मिनट्स. Will it be registered or not? Will it be not? Yes or no? Registered हो जाएगा 30 मिनट्स में, फ्रेश माइंड में. अच्छा, आपने ये सुना, एंड उसके बाद पूरे दिन में न्यूज आई कि ऐसे ऐसे हुआ, और अभी तक वो बच्चा घर में नहीं पहुंचा. आपने सुबह सुबह 30 टाइम्स सुना, परमात्मा आपके साथ है, everything would be very well. You just think of him. What will you do? It will obviously कि नहीं, I'll use it because it has been registered in the empty mind. और फिर आपने वैसे ट्राई किया, और many of us know as it is, लेट हो जाते, सब कुछ ठीक होता ही है, आ जाता है टाइम, पर हम वो 1.5 घंटा जो हम अदरवाइज इधर फोन करना, उधर, इधर डिस्टरबेंस, इधर
blame game, तुमको बोला, तुमको समझ में नहीं आता. You are in the office. You are not able to concentrate on your work, and there are important deliveries to be done. And this news comes to you. So therefore, this kind of input in the morning, positive, powerful input, it helps us to save how much time, which otherwise would have been wasted. इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो इसके आपके लिए ऐसे बोल रहा है. So many things going around us. So I know the whole, I have the weapons. It's like we are in the battle. There are many things coming and I don't have any weapons. So positive knowledge is the weapon. And with this positive knowledge, you are dealing with these things. फर्क होगा? Would there मन नहीं लग रहा था ना, वो that his mind will change. So I'm in the solution mode in that 1.5 hours, which otherwise I would have been in the problem mode. ये तो ऐसे ही करता हुआ है. तो मेरे अंदर तो मेरा वो 1.5 घंटा भी बचा. I am less thoughts, परफॉर्मेंस वैसी की वैसी, डिलीवरी भी अच्छी, और 2 घंटे के बाद वैसी न्यूज आ गई, सब कुछ ठीक है, वो आ गया घर में. तो क्या इंपॉर्टेंट है? सो वी ऑलवेज से द स्टेट ऑफ माइंड 1 करोड़, उसकी कीमत. रिलेशनशिप 1 लाख, मनी 1,000, एंड चीजें 100. जस्ट फॉर द कॉज ऑफ. अब क्या होता है, एक बार समवन, कुछ पैसे थे, and the wife gave to that somebody like the sister or no, just to handle it. और उसने उसको because उसको दिया हैंडल करने के लिए. 2 घंटे के बाद वो पता नहीं वो भूल गई, कहाँ रखा, कुछ मिस हुआ. उसने उसको बहुत जोर से डांटा. क्यों? क्योंकि इतना बहुत कुछ बोल भी दिया उस 2 घंटे में, और 2-3 दिन के बाद वो पैसे मिल गए. क्या हो जाएगा? दरारें रहेगी कि नहीं रहेगी? पैसे तो वापस आ गए, लेकिन वो एक क्रैक के साथ वो रिलेशनशिप रहती, बिकॉज बहुत कुछ बोल दिया. क्यों बोला? क्योंकि बहुत कुछ सोच लिया. और क्यों सोचा? क्योंकि यही सोचा था, यही सुना था कि लोग बड़े खराब होते हैं, जमाना बड़ा ऐसा है. दिस इज व्हाट आई लिसन्ड. तो 1 करोड़ की स्टेट ऑफ माइंड, आज एक 1,000 रुपीज जो नहीं मिला, विच इज मोर कॉस्टली. व्हाट शुड बी मोर इंपॉर्टेंट? पैसे तो वापस आ जाएंगे. हम मेनी टाइम्स रिलेशनशिप को, उस एक 1 करोड़ को 1,000 के कारण छोड़ देते. सो देयरफॉर we have to understand what is very very important is my state of mind, because उससे मुझे सब कुछ करना है. आज हमको मोबाइल बहुत इंपॉर्टेंट लगता है ना, क्योंकि उससे फोन भी कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, बुकिंग भी कर सकते हैं, ईमेल भी देख सकते हैं, एवरीथिंग डन जस्ट बाय दिस स्मॉल इंस्ट्रूमेंट. तो कई बार लोग क्या कहते हैं, कोई मनुष्य घूम जाए चलेगा, मोबाइल नहीं घूमना चाहिए, है ना? बिकॉज उससे बहुत कुछ कर सकते हैं. इससे we all have been listening the power of the mind. So if I really want to channelize the power, I need to grease it for some time. And this is the greasing. So therefore, and this, when I have this kind of lifestyle, what will happen?
The environment I'm creating, forget, no one in the house is ready to sleep. No one sleeps. उन लोग का जागरण ही शुरू, सुबह ही शुरू होती 10 बजे, no problem. I want to sleep. I'll do it. जैसे जैसे हम करते जाएंगे, and the parents, if they can do, what will happen? बच्चों में संस्कार जाएंगे, vibrations आएंगे कि नहीं आएंगे? Any one of us who complain that children हमारे बहुत लेट जागते हैं, one of the major reason is somewhere we have contributed to it. हम अपना काम करते थे और वो छोटे थे, उनकी आदत पड़ी कि लेट जागना चाहिए, एंड देयरफॉर वो लेट सोते और रात को पढ़ते, क्योंकि हम लोगों ने वो. तो अगर ऐसा एनवायरनमेंट, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, द प्रेशर, द माइंड इतना थका हुआ रहता है बच्चों का. हाउ मेनी ऑफ अस हैव किड्स who see the red light and get very irritated? है ऐसे टीनेजर्स हमारे सामने. एक रेड लाइट हो, एक इंटरनेट नहीं चलता हो, दे जस्ट बैंग इट, रेस्टलेस हो जाते, फॉरगेट अबाउट बैंगिंग, हो जाते, बिकॉज ये माइंड ऑलवेज थका हुआ. क्यों? क्योंकि ये लाइफस्टाइल है इनडिसिप्लिन. एंड देयरफॉर विद दिस लाइफस्टाइल नाउ, इसलिए आजकल फॉरगेट अबाउट दोज हु आर डूइंग द जॉब, दे आर कीपिंग लेट आवर्स, और इवन इन द एग्जाम्स, इवन बिफोर द एग्जाम्स, लोग बच्चे ड्रग्स लेके एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, बिकॉज दे फील सो अफ्रेड, दे आर स्कैर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस. And that time who can actually help them is we parents who have a disciplined lifestyle, who themselves are very powerful. तो इतने मन थका हुआ है कि forget about the job pressure or where you have to compete and do, but even the examination hall में enter करने के पहले ये चाहिए. और इसलिए सबसे ज्यादा बिकने वाली दवाई आजकल कौन सी है, पर्टिकुलरली इन द वेस्ट? कौन सी है? स्लीपिंग पिल्स सबसे ज्यादा बिकने. क्यों? क्योंकि सारा समय मन भागता रहता है, नींद ही ठीक से नहीं आती. नींद आना ही बहुत मुश्किल से आता, और अगर आती है तो माइंड तो सोता ही नहीं है. क्यों? क्योंकि रात को जब हम पढ़े थे, कैसे सोए थे. So how to sleep is more important for the start of the best discipline in life. तो 3 चीज है, सिंपल चीज है. एक तो अगर हम सोचे, बिकॉज जितना अगर हमको इमोशनली हेल्दी भी चाहिए, तो इमोशनल हेल्थ, उसके लिए इमोशनल डाइट, और whatever we see, listen, read, this is the diet for the emotions. And 3 habits to conclude. 1, positive emotional diet. Subah every day to spend at least 15-20 minutes purely leaving all the job aside, this kind of spiritual knowledge. Either you can listen to YouTube, or if you can join our regular 7 to 8 clubs. Just little bit of this knowledge. And second, rest of the mind. मन को थोड़ा रेस्ट दो, and if possible throughout the day, थोड़ी देर के बाद 1 minute silence, 10 seconds silence, at least until 2 p.m. before I go for the lunch. 2-3 बार माइंड को एकदम कनेक्ट, मेडिटेशन की जो प्रैक्टिस है उससे साइलेंस करो, सो दैट उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाए. जब हम, जैसे होता है ना, बहुत कर रहे हैं तो हम क्या करते, बैठ जाते हैं, तो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता. इसी तरह. एंड थर्ड इज मेडिटेशन. इफ दीज 3 हैबिट्स कुड बी टेकन केयर ऑफ, इट इज द बेस्ट. एंड देन गोइंग फॉर द जॉब. कैसा होगा जॉब हमारा? को क्या लगता है, जॉब ठीक रहेगा, नहीं रहेगा? If these 3 habits are the perfect job.
to energize ourselves and to be very powerful, even for the performance in the corporate level, I need this kind of simple techniques. और जब हम तो इसलिए क्या कैसे सोना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, इसलिए हम बहुत पुराने में कर देते ना, एक स्कूलों में गीत गाते थे, शाम हुई जल्दी सो जाना, रात हुई जल्दी उठ जाना, दिन में 3 समय ही खाना, देर देर से जो सोता है, बार बार में जो खाता है, धत्तेरे की धत्तेरे. It's a beautiful poem. It's a standard. इसलिए discipline. Let us start with this powerful energy. So, is it okay for everybody? So, the more I am in this kind of discipline, then I will be emotionally charged, and when I'm emotionally charged, I'll make the environment lighter. और ऐसे लाइट एनवायरनमेंट में चिल्ड्रन, आप बच्चों को बोलना नहीं पड़ेगा आपको जल्दी सो जाओ, आपकी वातावरण उसको मोटिवेट करेगी राइट डिसिप्लिन होने की, और आपके पास इमोशनली हेल्दी चाइल्ड. नाउडेज चिल्ड्रन हैव बिकम मोर कंफर्ट ओरिएंटेड और इसलिए कमजोर हो गए. थोड़ा कुछ हुआ, majority of the cases which we have in the center, बच्चा मानता नहीं, बच्चा बहुत जिद्दी करता है, उसको ये चाहिए तो ये चाहिए ही, यही खाना चाहिए. क्यों? इमोशनली वीक चाइल्ड है. And why? Because this is what is happening. So if I can do this, so this is a simple homework, if really will work, and if as I said, our 2 years of association, let us start with this kind of discipline. So small homework, I will sleep on time. Just keep not beyond 11 o'clock at least, and wake up early morning, starting the day with positive, emotional, healthy diet, and taking care of emotionally healthy food, which will take less next time. This is called discipline. हो सकता है? Possible? How do you feel? होमवर्क करेंगे सभी, बड़ा चेंज है, धीरे धीरे चेंज करो. अगर आप 12 करते हो तो आप 11:30 करो, एक दिन 11:30 करो, फिर 2 दिन फिर 11 करो, and that maybe by next Tuesday will come by 10:30 at least. So how many of us will do it? Wonderful. I'm getting very good chats. Thank you very much. So I'll listen from you the effort, the power you'll have by doing this little bit change. And then that meditation. What is that meditation? One simple 20 seconds will do this meditation. सब बातों से एकदम पॉइंट ऑफ लाइट में फोकस करें. By the point of light, whichever seat I'm sitting, इसी seat पर there is the flow of energy from the Supreme. I'm under the shower of blessings from the Supreme. I'm blessed with love, peace, happiness, bliss. ये मेरी बरसात की तरह मेरे ऊपर आ रही. So So this is the simple meditation. Okay, thanks a lot for good response. Thank you, Didi. And we will definitely try to initiate the practices you shared in the homework today. Thank you so much, everyone, for attending this session.
and let's meet next week. And I hope whatever Didi has given us to practice, we will share some of our experiences and let her know that how they are uh, giving us positive responses in our life. Thank you so much. Let's meet next week. Thank you. Om Shanti.